Children, let's begin with today's class. And first of all, I would like to give you a quick reminder as always. So in the last class I was telling you about the agencies, nutritional agencies, and the agency which we did discuss in the last class is your NIN. Okay, before NIN we were discussing about FAO. Okay, that is Food and Agricultural Organization, and now the next we are dealing with is NIN, that is National Institute of Nutrition, Hyderabad. Okay, so in NIN I did tell you about sorry, the history of it. Okay, how it was originated basically, and how it from the very unit, how it get blossomed into something into a proper research unit. Okay, so I told you this thing about the history, and then I told you about the objectives of the NIN, and after objectives I told you about the structure of NIN, and along with the structure we also did discuss about the staffing pattern of NIN. Okay, so now we have to from today we have to start with the facilities available. So like, what sort of facilities are available in the NIN? What kind of facilities does NIN has in it, and what kind of facilities is it providing to people? Okay, so for the very first facility is the laboratory facility. Of course, that is a research unit. So the very first facility has to be the laboratory facilities. So here what they did, they highlighted the sophisticated and modern facilities. Some sophisticated and modern facilities got developed, not like whatever has been done from the past or the previous era, they were just continuing it. No, but they developed some modern sort of facilities, some more sophisticated kind of facilities. Okay, so what were those facilities? I will be telling you. In the laboratory facilities, first of all, they had excellent facilities in the laboratory department of theirs. In the laboratories were the high quality, or you can say the modern kind of laboratories they were, and they did cover a wide range of facilities, a wide range of specialities in it. Wide range of specialities में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी? It has the laboratory facility for biochemistry, food chemistry, pathology, immunology, hematology, microbiology, endocrinology, then physiology, toxicology, molecular biology. Okay, so these were certain sort of laboratory facilities which were available at their best in this particular NIN. Okay, then also they had some good sort of equipments with them. The instrumental you can say the instrumental quality of theirs was also one of the best. They have good quality of equipments, important equipments, whatever are necessary for conducting their researches. They have equipments for that. Some equipments which can be listed are the very first is DEXA. They have DEXA with them. DEXA is dual emission X-ray absorptiometry. Okay, that is dual emission X-ray absorptiometry. That is DEXA. So they have this particular instrument with them. Then they have atomic absorption spectrometry, that they have in them. Third they have is amino acid analyzer, that is with them. Then next they have is whole body counter. Next is plasma emission analyzer. Next is image analyzer, PC based. Next is microprocessor, or the microprocessor itself is known as the computer controlled spectrophotometer. Okay, spectrophotometer. Okay, so they have this microprocessor, or that is itself known as the computer controlled spectrophotometer. So that is there. Then next they have with them is the radioactive isotopes counter. Next is the HPLCs. They have HPLCs or the GLCs, you can say. Auto analyzers are there. Then they have the bicycle ergometer, or the treadmill, or the underwater weighing system. So that is there. Then high speed ultra centrifuges are there. Refrigerator centrifuges are there. Microscopes are there. In short, if we summarize everything and if we sum up all this, you can say
they have almost everything which they need for the researches which they have to conduct for the nutrition science. Okay, for the nutritional science, whatever researches जो भी उन्हें conduct करनी है उनके लिए they have pretty much everything, all the equipments which they need. Okay, all the sort of analyzers or the sort of centrifuges they have. Then they have the machines which they need, like some X-ray DEXA is there. Okay, then all these things are there with them, whatever they require for conducting the researches of their own field. Okay, so this was about the laboratory facilities, because we are discussing about the facilities, no? So in the facilities, the first one was the laboratory facilities, and I hope it is clear to you all. Now the next facility is the clinical facilities. लेबोरेटरी फैसिलिटीज के अलावा क्लिनिकल फैसिलिटीज क्या क्या थी उनके पास? तो लेबोरेटरी फैसिलिटी तो उनके पास थी ही, along with that they also had the outpatient and inpatient services for the people. ओके, क्लिनिकल फैसिलिटीज में उनके पास आउटपेशेंट और इनपेशेंट डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें कि उन्होंने तीन उन्होंने यूनिट्स, न्यूट्रिशनल यूनिट्स तैयार कर रखी थी लोकली. ठीक है, ये तीन न्यूट्रिशनल यूनिट्स क्या क्या थी? लोकल हॉस्पिटल्स थे आप कह सकते हो. ठीक है, ये तीन इनके लोकल हॉस्पिटल्स थे जो इन्होंने बना रखे थे. तो क्या क्या थे वो, कहाँ पे थे? इट वाज द उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल. उस्मानिया में क्योंकि इनका खुद का द NIN गॉट शिफ्टेड, तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में. सो उस्मानिया में ही इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया, दैट वाज द उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल. नेक्स्ट वाज द नीलोफर हॉस्पिटल. Next one was the government maternity hospital, and all of these three hospitals were at Hyderabad itself. मैंने बोला ना लोकल हॉस्पिटल्स, लोकल मतलब क्योंकि ये NIN भी हैदराबाद में ही था, तो ये हॉस्पिटल्स भी इन्होंने हैदराबाद में बनाए. एंड दीज हॉस्पिटल्स वर बेसिकली, इट वाज देयर टू प्रोवाइड द इनपेशेंट एंड आउटपेशेंट सर्विसेज टू द पीपल. ओके, दिस वाज द वन थिंग कि क्यों हॉस्पिटल्स बनाया, ताकि इन पेशेंट और आउट पेशेंट सर्विसेज तो प्रोवाइड कर ही दे, साथ साथ में इट वॉज ऑल्सो मेड टू कैरी आउट द रिसर्च ऑन द एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, उन रिसर्चेस को कैरी आउट कर सकें जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के ऊपर बेस्ड है, या फिर जो न्यूट्रिशन के क्लिनिकल एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है. तो उन रिसर्चेस को कैरी आउट करने के लिए भी दीज हॉस्पिटल्स वर मेड. क्योंकि अगर आप पेशेंट के पास होगे, हॉस्पिटल है, वहां पे पेशेंट्स आ रहे हैं, देन ओनली यू विल बी गेटिंग टू नो दैट व्हाट आर द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द एग्जिस्टिंग न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स फॉर विच द वर्क हैज टू बी डन. Okay, so for that these nutritional units were made, and so that first of all the inpatient and outpatient services could be provided, and along with that most importantly the researches can be conducted on the base which have to be a basis of the clinical aspect of the nutrition. The nutrition की clinical I'm so sorry, my throat's a bit choked, so sorry. So yeah, for this one it was made. Okay, then also the metabolic units were made. Also there were some metabolic studies conducted. metabolic studies को conduct किया उन volunteers के ऊपर who were volunteering themselves, of course. Okay, so there was also a metabolic unit. वहां पे उनके पास एक metabolic department भी था, metabolic unit भी थी. ये metabolic unit क्या कर रही थी? This was basically carrying out the studies, the metabolic studies on the volunteers. जो खुद को volunteer कर रहे थे उनके ऊपर ये metabolic department या फिर जो metabolic unit है ये metabolic studies को conduct करवा रही थी. ठीक है, this was also a part of the clinical facilities. So now the next facility which we will be discussing is the communication and computation facilities. Communication and computation facilities. So communication and computation का क्या मतलब है? First of all, we are talking obviously about some communication. Communication can be the NIN के अंदर का communication. It can also be the communication with the people. Okay, so I'll be telling you that which one I am talking about here. Okay. So they have a proper infrastructure facilities in the NIN itself. NIN के पास proper infrastructure facilities थी. ठीक है, ये infrastructure facilities उनकी इतनी efficient थी कि because of the efficiency the communication was
the communication was proper and the information could be easily transmitted through the internet and through the email facilities. Okay, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, उनका कम्युनिकेशन अच्छा था, इंफॉर्मेशन को आराम से पास ऑन किया जा सकता था फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट और विद द हेल्प ऑफ द ईमेल्स. तो वो आराम से इट वॉज एबल टू पास फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. ओके, देन जो हमारा सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी था NIN में, सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी हमारा जो था NIN का, ये जो पार्ट था NIN का, सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी, दे हैड सेवरल कंप्यूटर्स विच वर देयर एंड विद द हेल्प ऑफ दीज कंप्यूटर्स, और इन कंप्यूटर्स में मेनली बहुत सारे कंप्यूटर्स इनके पास इंस्टॉल्ड थे और इन कंप्यूटर्स में सारा वो डेटा स्टोर्ड होता था जो कि कलेक्ट कर रहा था नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो. ठीक है, मैंने आपको बताया था NIN ने ही नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो को भी लॉन्च किया था. ठीक है, सो बेसिकली मैंने अभी तक यहाँ पे क्या बताया एक बार मैं रिपीट करूंगी. मे बी यू पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो, मे बी यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड. सो this facility which we are talking about here is communication and computation. Okay, कंप्यूटेशन और कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं मतलब हम कुछ डेटा स्टोर करने की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब वो डेटा को कम्युनिकेट करने की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द NIN वॉज इफिशियंट इनफ कि हर एक इंफॉर्मेशन आराम से पास ऑन हो जाती है with the help of internet and with the help of emails. Then next thing which is mentioned is कि NIN का जो मेन यूनिट है इंफॉर्मेशन का, दैट इज द सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी. ये जो सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी है, इट हैज वेरियस कंप्यूटर्स इन इट एंड द these computers store the data which has been collected by the National Nutrition Monitoring Bureau NNMB. तो NNMB ने जो 10 स्टेट्स से भी जो NNMB जो 10 स्टेट से जो भी डेटा वो कलेक्ट करता है, ओके, द डेटा विच इज कलेक्टेड बाय NNMB फ्रॉम इट्स 10 स्टेट्स, अपने 10 स्टेट से NNMB जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो सारा डेटा इन कंप्यूटर्स के अंदर स्टोर्ड होता है. ओके, देन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एडिशनली हर एक डिपार्टमेंट को NIN के कंप्यूटर्स मिले हुए हैं ताकि जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा वो अपने पास रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं. स्टैटिस्टिकली डेटा को प्रॉपरली एनालाइज किया जा सके, इसके लिए भी हर एक डिपार्टमेंट के पास अपने अपने कंप्यूटर्स हैं टू स्टोर देयर ओन डेटा एंड टू कैरी आउट देयर स्टडीज एज वेल. ओके, so this was about the communication and computation facility. The next facility which we will be talking about is the education and training programs. Education and training programs में हमारा क्या है, first of all बहुत सारा रिसर्चेस कंडक्ट किया न्यूट्रिशन के ऊपर, बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट करी एंड बिकॉज ऑफ दिस एक रिकग्निशन आया इन द पीपल कि दैट या न्यूट्रिशन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. ठीक है, बहुत सारी स्टडीज के बाद, बहुत सारा असेसमेंट के बाद, बहुत सारा रिसर्चेस के बाद वी हैड अ पॉइंट दैट या न्यूट्रिशन ऑल्सो हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल. सिर्फ बीमारियों को दूर करने से कुछ नहीं होगा या फिर सिर्फ ट्रीटमेंट करने से कुछ नहीं होगा इफ द न्यूट्रिशन ऑफ द पर्सन इज नॉट टेकन केयर. ओके, ये पॉइंट सामने आया एंड विद दैट इटसेल्फ न्यूट्रिशन को एक राइटफुल प्लेस मिला, न्यूट्रिशन को एक जगह मिली इन द हेल्थ प्रोग्राम्स विच वर कंडक्टेड फॉर द कम्युनिटी. जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स थे उन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब कम्युनिटी की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रोग्राम्स को लॉन्च किया जा रहा था, फिर उन प्रोग्राम्स में न्यूट्रिशन को अपनी एक प्रॉपर प्लेस मिली सो दैट न्यूट्रिशन को भी प्रॉपर ध्यान दिया गया. ओके, एंड विद द पीपल गेटिंग अवेयर ऑफ द रोल ऑफ द न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल, इट ऑल्सो had some governmental and non-governmental agencies involved in it. बहुत सारा गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज भी फिर इसके ऊपर उन्होंने भी काम किया. ये सारी चीजें होने से क्या हुआ, बहुत सारे फिर बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया, बहुत सारे लार्ज स्केल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया. इसका क्या मतलब है कि न्यूट्रिशन को भी बहुत ज्यादा फिर इम्पोर्टेंस मिली और उसको इम्पोर्टेंस दिलाने में गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने
सबने कोलैबोरेट करके देन दे had this thing done to launch the programs at a larger scale, to launch the nutritional programs at the larger scale. कि पहले तो बाकी सारे कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे थे, लेकिन न्यूट्रिशन का कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं था. जैसे कि अभी हमने पीछे कितने सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स पढ़े, यानी विटामिन ए प्रोफिलेक्सिस प्रोग्राम हो गया हमारा, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के लिए हमारा देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोग्राम. ठीक है, सो वेरियस अदर प्रोग्राम्स आर देयर. सो न्यूट्रिशन के प्रोग्राम्स को उसके बाद शुरू किया गया ऑन अ लार्जर स्केल. ओके, सो या एंड फिर उसके बाद उस प्रोग्राम के प्रॉपर प्लानिंग के लिए, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा फुलफिल करने के लिए, फिर हमारा ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया दैट द पीपल, द पर्सनल्स हु आर इन्वॉल्व्ड इन दीज प्रोग्राम्स हैव टू बी प्रॉपरली ट्रेन्ड. ओके, एडिक्वेटली दे शुड बी ट्रेन्ड इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन. जब प्रोग्राम्स लॉन्च किए तो प्रोग्राम्स को चलाने के लिए भी तो पीपल चाहिए ना, उसके प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए लोग चाहिए ना. सो वो कब हो पाएगा, जब जो लोग उस प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं, जब वो ट्रेन्ड इनफ रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, तभी वो चीज हो पाएगी. ठीक है, सो या दीज वर द थिंग्स विच वाज इंक्लूडेड इन द एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम. साथ साथ में कुछ और चीजें हैं जो एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया. जैसे कि क्या है, पहले मैं बता दूं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि बहुत अर्जेंट एक नीड हो गई. इट वॉज अर्जेंटली नीडेड टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन बेस्ड ट्रेनिंग. न्यूट्रिशन को मेडिकल करिकुलम में लेके आना, मेडिकल टीचिंग में लेकर के आना, इट वॉज अ नेसेसिटी एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. कि जो मेडिकल पढ़ाई बाकी तो हो ही रही है, साथ साथ में मेडिकल पढ़ाई में न्यूट्रिशन को भी इन्वॉल्व करना चाहिए. न्यूट्रिशन के लिए भी स्पेशलिटीज होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए लोगों को. सो दिस वाज मेड. देन नेक्स्ट इज हर एक न्यूट्रिशन के वेरियस डिपार्टमेंट्स को अपने माइंड में रखते हुए, कीपिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन माइंड, ऑल्सो वेरियस अदर कोर्सेज वर इन्वॉल्व. बहुत सारे कोर्सेज को इन्वॉल्व किया, इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, सो और उसके बाद लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी गई. कोर्सेज तो दिए, डिप्लोमा और डिग्री और ये सारी ट्रेनिंग और कोर्सेज को भी फिर प्रोवाइड किया गया. ओके, और मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था ये ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने का, क्यों हमने ट्रेनिंग शुरू करी, क्यों ट्रेनिंग शुरू करी गई फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स. उनको ट्रेनिंग देने के पीछे कुछ रीजंस, कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे. क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो भी हमारे पर्सनल्स हैं, पर्सनल्स मतलब जो न्यूट्रिशनल पर्सनल्स हैं, द हेल्थ केयर न्यूट्रिशनल पर्सनल्स, सो दोज पर्सनल्स should be made exposed to the latest updated information about the nutrition. जो अपग्रेडेड टीचिंग है न्यूट्रिशन की, उनको वो अपग्रेडेड टीचिंग मिल सके, अपग्रेडेड लेसन मिल सके अबाउट द न्यूट्रिशन. एंड और ये मेनली फोकस किया गया इन द डेवलपिंग कंट्रीज. बाकी कंट्रीज में तो इट वाज done, but the main focus was in the developing countries, because the people in the developing countries were seen to be suffering more from the nutritional problems. So mainly the focus was shifted to the developing countries. Developed countries were involved as well. The courses were there as well. The health personnels were getting trained in the field of nutrition in the developed countries as well. पर डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि सबको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, सबको प्रॉपर यू कैन से दे हैव टू बी स्किल्ड इनफ सो दैट दे विल बी गेटिंग एक्सपोज्ड टू द अपग्रेडेड न्यूट्रिशनल टीचिंग. ओके, ये पहला ऑब्जेक्टिव था ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड फॉर अपग्रेडिंग द टीचिंग ऑफ न्यूट्रिशन इन मेडिकल कॉलेजेस एंड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज. जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी टीचिंग को अपग्रेड किया जा सके. यूनिवर्सिटीज में टीचिंग को अपग्रेड किया जा सके ताकि वहां पे बच्चों के करिकुलम में द अपग्रेडेड टीचिंग शुड ओनली बी इंक्लूडेड. सो उसके लिए भी, उसको एक प्रॉपर बैकग्राउंड देने के लिए भी द ट्रेनिंग वाज स्टार्टेड. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू बिल्ड अप अ टीम. जो वर्कर्स या जो पर्सनल्स काम कर रहे हैं न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स के लिए या फिर किसी भी तरीके से जो न्यूट्रिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी, सो जो भी लोग न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो भी पर्सनल्स हैं जो न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
वो एक ऐसी टीम बनाई जा सके ऑफ द वर्कर्स ऑफ और what am I saying? So to make up a team or to make up a corps you can say of the workers, एक ऐसी टीम बना सके वर्कर्स की या फिर the team of the personals जिसमें कि the people or the workers will be playing their necessary leadership role. Okay, एक ऐसी टीम बना सकें of the workers of the nutrition personals जिसमें कि the people will be playing their necessary leadership roles. लीडरशिप रोल्स किस किस चीज के लिए? इन द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन ऑफ द कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स. जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हैं उसमें जो भी वर्कर्स इन्वॉल्व्ड हैं वो वर्कर्स की टीम ऐसी होनी चाहिए कि हर एक इंसान, हर एक पर्सन उस टीम का अपना अपना नेसेसरी लीडरशिप रोल प्ले कर सके while we are planning for something or while something is being implemented or while something is being evaluated in the program. Okay, I hope it made sense. Okay, and you people are getting it, I hope. Then next objective was to help participants acquire skills. जो participants हैं उनको knowledge के साथ साथ, training के साथ साथ, education के साथ साथ skills भी develop हो सकें. ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द स्किल्स. ठीक है, सो उनके अंदर स्किल्स भी डेवलप हो सके. स्किल्स किस चीज के लिए? फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर थियोरेटिकल एस्पेक्ट, फॉर क्लिनिकल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग कोई इन्वेस्टिगेशन है तो, कोई थियोरेटिकल एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन का तो, कोई क्लिनिकल या फिर अप्लाइड एस्पेक्ट है न्यूट्रिशन का तो भी दे शुड बी डेवलपिंग देयर पर्सनल स्किल्स टू दैट एक्सटेंट कि वो उतना अच्छा हो सके, उतना इफेक्टिव, उतना इफिशिएंट वो हो सके. ओके, द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज देयर वर, बिकॉज ट्रेनिंग की हमने बात करी है कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था कि हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ट्रेनिंग में कुछ कोर्सेज को स्टार्ट किया गया. क्या थे वो कोर्सेज? द वेरी फर्स्ट इज द एमएससी उन्होंने स्टार्ट किया. मास्टर्स स्टार्ट किया किस चीज में? मास्टर्स कोर्स इन अप्लाइड न्यूट्रिशन. ओके, द फर्स्ट कोर्स इज द मास्टर्स कोर्स इन अप्लाइड न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स इन द न्यूट्रिशन. देन नेक्स्ट इज एनुअल ट्रेनिंग कोर्स ऑन एंडोक्राइनोलॉजिकल टेक्निक्स. ठीक है, एनुअल ट्रेनिंग कोर्सेज को, एनुअल मतलब पर ईयर, तो ईयरली इन्होंने कोर्सेज को स्टार्ट किया किस चीज के ऊपर? ऑन एंडोक्राइनोलॉजिकल टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन. ठीक है, और इन तीनों कोर्सेज के अलावा जो इन्होंने एक चीज और करी वो ये था कि न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स में या फिर एनीबॉडी इन द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन, वो जिस भी डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग दे वर ऑल्सो गिवन सम एड हॉक एजुकेशन यू कैन से. ठीक है, उनको एड हॉक प्रोग्राम्स में भी उनको इन्वॉल्व कर रहे थे ताकि उनको उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग दे विल बी गेटिंग स्किल्ड इन देयर ओन डिपार्टमेंट्स. और ये मेनली दिस वाज हैपनिंग. ये क्यों करवाया जा रहा था ऐसा? because of the request by the government or because of the request by the non-governmental organizations. तो गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग और इन न्यूट्रिशन वर्कर्स के डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग इट वाज कंडक्टेड देयर. ओके, बेसिकली द कोर्सेज वर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. ओके, सो दीज वर द फैसिलिटीज ऑफ द NIN. जो NIN हैदराबाद की हमारी कुछ फैसिलिटीज थी. सबसे पहला हमारा क्या था? लेबोरेटरी फैसिलिटी. देन देयर वाज this clinical facility, then there was communication and computation facility, then there was education and training programs. फिर उसके बाद आगे हमारे programs थे. So programs and facilities are different by the way. ठीक है, education programs हमारे different है. So then we studied about the educational programs. Now we will be studying about the achievements. क्या achievements थे हमारे जो NIN हैदराबाद है उसके क्या achievements थे शुरुआत से लेकर के अभी तक कि क्या उनके अचीवमेंट्स थे. ओके, सो फर्स्ट द वेरी फर्स्ट अचीवमेंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अचीवमेंट्स बहुत हैं, आपने कुछ पीछे पढ़े भी हैं. अभी हियर यू विल बी गेटिंग टू नो दैट ओके दिस पर्टिकुलर थिंग वाज स्टार्टेड बाय NIN. कुछ जगहों पे पीछे मेंशन था
ओके, इट इज डन बाय NIN, कुछ जगहों पे नहीं मेंशन था, बट हियर यू विल बी गेटिंग टू नो दैट ओके दिस वाज गिवन बाय NIN, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट अचीवमेंट बाय NIN वाज कि NIN ने इंडियन फूड में मोर देन 580 इंडियन फूड्स की न्यूट्रिटिव वैल्यू को फाइंड किया, ठीक है, कि राइस का क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, पल्स का क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ग्राम्स का क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है, या फिर हमारा व्हीट का क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, फिश का क्या न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है। सो NIN हैज डिटरमाइंड और हैज आइडेंटिफाइड द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ मोर देन 580 इंडियन फूड्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद इनका प्रॉपर पब्लिकेशन किया एज न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स, ठीक है। न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ इंडियन फूड्स में इन्होंने पब्लिश किया जो भी इन्होंने न्यूट्रिटिव वैल्यू फाइंड आउट किया ऑफ मोर देन 580 इंडियन फूड्स, ओके, दैट इज टू मच, ठीक। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट अचीवमेंट। सेकेंड अचीवमेंट वॉज it also identified the requirement of energy and nutrients. एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है उसको भी इन्होंने असेस किया, और उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का, ये उसी से आया। जब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का क्या मतलब है कि कितना आपको किस चीज को कितना रिकमेंडेशन है, कि अगर प्रोटीन है तो वो इतना ही लेना है, इस चीज में से इतना ही लेना है, ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो इस चीज में से इतना ही लेना है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है ना, जब रिक्वायरमेंट पता होगी तभी तो हम किसी चीज की लिमिट सेट कर सकते हैं। तो वो रिक्वायरमेंट को पता करने का काम किया है NIN ने, ओके। इट फिगर्ड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, जो हमारा एनर्जी का जो न्यूट्रिएंट्स का जो रिक्वायरमेंट है, इट फिगर्ड आउट दैट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम द रिजल्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट इनको पता चली उसके बेसिस में ही फिर हमारा ये जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया इंडियंस के लिए, ठीक है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर इंडियंस, ये इंडियंस की बात कर रही हूँ मैं, उनके लिए बनाया गया इसी स्टडी या इसी जो ये इन्होंने ये कंडक्ट किया, रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट किया उसी के बेसिस पे, ठीक है। दिस वाज द सेकेंड अचीवमेंट। थर्ड अचीवमेंट इज कि इन द केस ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में earlier it was considered that protein energy malnutrition basically happens because of the deficiency of proteins, कि सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो रहा है। बट इन्होंने ये फिगर आउट किया कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी वाज अ मिथ, ओके, प्रोटीन की डेफिशिएंसी वाज अ मिथ, एंड अलोंग विथ प्रोटीन्स बहुत ज्यादा जो कैलोरी गैप है, मतलब जो कैलोरी डेफिशिएंसी है, दैट इज द यू कैन से इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ठीक है। इन्होंने इस चीज को फाइंड आउट किया कि प्रोटीन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इट्स नॉट लाइक दैट। जो कैलोरी गैप है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन को कॉज करने के लिए। तो ये भी इन्होंने ही फाइंड आउट करके दे स्टिपुलेटेड इट, ओके, दे गेव दिस स्टेटमेंट बेसिकली। सो द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दे फॉर्मुलेटेड एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स फॉर द women, for the growing boys and the growing girls, not the women, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स को बनाया। एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है कि एक बच्चा जिसकी एज ग्रुप, ये अगर एक टॉडलर है तो उसकी, टॉडलर मतलब आपको पता है एज ग्रुप, टॉडलर इज अ माइलस्टोन, ओके, इट इज एन एज ग्रुप। तो जो बच्चा टॉडलर है, टॉडलर्स की जो हाइट है वो इतने से इतने के बीच होनी चाहिए, उनका जो वेट है वो इतने से इतने के बीच होना चाहिए। तो ये इतने से इतने के जो बीच होना चाहिए मैं बोल रही हूँ वो क्या है, दैट इज अ स्टैंडर्ड। फिर स्टैंडर्ड से ही हम कंपेयर करते हैं जो रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है। सो हियर दे डिड द सेम, they had this NIN, they developed and they built up the standards of the anthropometric measurement for the growing girls and the growing boys, और साथ साथ में इस एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट को इन्होंने एक बेसिस भी माना फॉर चेकिंग द ग्रेड ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। स्टैंडर्ड को सेट किया
और फिर इन्होंने ही ये भी बोला कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट को हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट दैट इफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, और अगर वो सफर कर रहा है तो किस ग्रेड का प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है. ठीक है, सो दैट वाज आल्सो सेड बाय द NIN. द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट डेवलप्ड सिंपल एंड सेंसिटिव बायोकेमिकल इंडिकेटर्स. सिंपल और सेंसिटिव बायोकेमिकल इंडिकेटर्स को इन्होंने बनाया फॉर असेसमेंट ऑफ द वाइटामिन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द वेरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स. ठीक है, बायोकेमिकल इंडिकेटर्स को इन्होंने बनाया, बायोकेमिकल इंडिकेटर्स को इन्होंने सेट किया. किस लिए? ये पता करने के लिए जो बहुत सारी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या जो बहुत सारे जो डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरीके से बॉडी में काम कर रही है. ठीक है, क्या रीजन है उसके पीछे, हाउ इज इट अफेक्टिंग द बॉडी, वो भी फाइंड आउट करने का जो काम है वो भी NIN हैदराबाद ने ही किया. ओके, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट्स. Then next is it also demonstrated the efficacy of the use of the massive use of vitamin A for the treatment of xerophthalmia in children. इन्होंने ये बोला कि अगर विटामिन A को मैसिवली यूज किया जाए तो बच्चों में जो xerophthalmia है उसको हम क्योर कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं. ओके, ये भी NIN हैदराबाद ने ही दिया था. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट डेवलप्ड द प्रोसेस ऑफ डबल फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट. अगर आपको याद हो, व्हाइल आई वाज टीचिंग यू द आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, गोइटर में पढ़ा रही थी, तो वहां पे मैंने आपको ये चीज बोली थी कि NIN हैदराबाद ने क्या किया. लास्ट में मैंने ये बात आपको बोली है कि NIN हैदराबाद ने क्या किया, इन्होंने सॉल्ट का डबल फोर्टिफिकेशन किया. डबल फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि सो इन्होंने डबल फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है कि कॉमन सॉल्ट में आयरन और आयोडीन दोनों को ऐड किया. पहले सिर्फ आयोडीन ऐड हो रहा था, राइट. तो इन्होंने लेकिन क्या किया, इन्होंने कॉमन सॉल्ट में डबल फोर्टिफिकेशन किया, डबल एडिशन किया. डबल एडिशन किन किन चीजों का, आयरन एंड आयोडीन. फिर उसको काफी टेस्ट किया गया, उसके बाद देन इट केम टू लाइक या ओके इट इज फाइन टू यूज, इट इज गुड फॉर द पीपल टू यूज इट, क्योंकि उससे आयरन और आयोडीन दोनों की डेफिशिएंसी प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, सो ये भी फिर हमारा जो NIN ने यही चीज यहाँ पे दी हुई है अचीवमेंट्स में कि NIN डेवलप्ड द एफिकेसी डबल फोर्टिफिकेशन हमारा जो है वो भी NIN ने किया सॉल्ट का, दैट इज द एडिशन ऑफ द आयरन एंड आयोडीन विद द कॉमन सॉल्ट, ताकि दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. आयरन से क्या सॉल्व हो सकता है, अनीमिया. ठीक है, आयरन दे रहे थे अनीमिया को क्योर करने के लिए, आयोडीन दे रहे थे गोइटर को क्योर करने के लिए. तो इस एक फोर्टिफिकेशन से टू लीडिंग प्रॉब्लम्स कुड बी ओवरकम्ड. ओके, टू प्रॉब्लम्स कुड बी क्योर्ड. तो इसके लिए इन्होंने डबल फोर्टिफिकेशन किया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट्स. देन नेक्स्ट इज NIN ने क्या किया, न्यूट्रिशन की प्रॉपर स्टडी किया कि किस तरीके से न्यूट्रिशन इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, साथ साथ में किस तरीके से इन्फेक्शन इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है. ठीक है, बोथ ऑफ द थिंग्स दे स्टडीड एंड देन प्रॉपर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल इन्होंने दिया. ठीक है, इन्होंने ये देखा कि न्यूट्रिशन किस तरीके से इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है, किस तरीके से न्यूट्रिशन इम्यूनिटी को लोअर करता है, और क्या इंटरेक्शन है इन्फेक्शन का विद द इम्यूनिटी. इस चीज को उन्होंने प्रॉपरली स्टडी किया. प्रॉपर स्टडी करने के बाद दे गेव अ प्रॉपर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल देमसेल्व्स. ठीक है, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द अचीवमेंट्स. नेक्स्ट अचीवमेंट इज इट स्टडीड द एफिकेसी ऑफ द आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. इन्होंने सिर्फ स्टडी नहीं किया, इन्होंने बताया कि क्या इम्पोर्टेंस है, कितना इफिशियंट है आयरन और फॉलिक एसिड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. किस लिए, ताकि प्रेगनेंसी के टाइम पे किस लिए दिया जाता है आयरन और फॉलिक एसिड, ताकि मदर में अनीमिया ना हो और जो बच्चा डिलीवर होगा दैट विल नॉट बी लो बर्थ वेट, उसका लो बर्थ वेट ना हो. ठीक है, क्योंकि लो बर्थ वेट हमारे जो चिल्ड्रन होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, लो बर्थ वेट, वो आगे जाकर के लाइफ में दे विल ऑलवेज बी लो इन इम्यूनिटी, दे विल बी very prone to get diseases, and also there will not be an appropriate growth and development further in the life.
ठीक है। सो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने ये बताया कि आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है फॉर द प्रेग्नेंट विमेन। एंड इसी को फिर इनके इसी स्टेटमेंट के बेसिस में देयर वाज अ प्रोग्राम लॉन्च्ड, एक नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ऑन आयरन फोलेट सप्लीमेंटेशन। आयरन फोलेट सप्लीमेंटेशन में फिर नेशनल प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय NIN। क्या था वो स्टेटमेंट? दैट द यूज ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड इज वेरी इफिशियंट एंड इज वेरी इफेक्टिव फॉर द pregnant women, and it reduces the risk of anemia, and also it reduces the risk of low birth weight child, okay, low birth weight infant. So yeah, this was about it. The next achievement was innovative approaches were adopted to develop the information, education, communication tools and also to utilize them. बहुत सारे इनोवेटिव अप्रोचेस को इन्होंने दिया, बहुत इनोवेटिव अप्रोचेस इन्होंने लिए और बहुत इनोवेटिव अप्रोचेस को अडॉप्ट किया ताकि वो डेवलप कर सके इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन टूल्स को। जो टूल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए, टूल्स कैन बी द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, साथ साथ में उनको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा सके। जो एजुकेशन वो दे रहे हैं वो कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो सके, इसके लिए भी इन्होंने बहुत सारे इनोवेटिव अप्रोचेस को लिया और बहुत सारे टूल्स को डेवलप किया। ओके, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द NIN हैदराबाद। ठीक है, सो या आई होप इट वाज क्लियर टू यू। मैं एक बार जल्दी से जिस्ट सा बता देती हूँ कि अचीवमेंट्स में मैंने आपको क्या क्या बताया है। द वेरी फर्स्ट थिंग आई टोल्ड यू कि इन्होंने न्यूट्रिटिव वैल्यू को डिटरमाइन किया 500 से ज्यादा इंडियन फूड्स में। सेकेंड वॉज के एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का, सेकेंड वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स वॉज डिटरमाइंड बाय देम। रिक्वायरमेंट को पता किया, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस को उसी की वजह से फिर बनाया गया। नेक्स्ट इज प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में कैलोरिफिक गैप को भी हाईलाइट किया। ठीक है, कैलोरिफिक गैप क्योंकि हाईलाइटेड नहीं था तो कैलोरी गैप या कैलोरिफिक गैप को भी हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट इज ऑल्सो दे have had the proper standards for anthropometric measurement, or the anthropometric standards were formulated by them. Next is बायोकेमिकल इंडिकेटर्स को बनाया ताकि जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उनका जो इटियोपैथोजेनिक मैकेनिज्म है उसको फाइंड आउट किया जा सके। नेक्स्ट इज विटामिन ए के मैसिव यूज का कितना वो हेल्पफुल है ज़ेरोथैल्मिया के लिए इन चिल्ड्रन, उसको फाइंड आउट किया। नेक्स्ट they have double fortified the salt. Then next was न्यूट्रिशन कैसे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, साथ साथ में इन्फेक्शन का क्या इंटरेक्शन है इम्यूनिटी के साथ, उसको भी इन्होंने स्टडी किया, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल को दिया। देन नेक्स्ट इज दे हैव आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के कितना क्या इंपॉर्टेंस है, दैट ऑल्सो दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट दे हैव बहुत सारा जो इनोवेटिव अप्रोचेस को दे हैव फॉर्मुलेटेड ताकि टूल्स को डेवलप किया जा सके। सो दीज वर द अचीवमेंट्स ऑफ द NIN हैदराबाद। ओके, सो या आई होप इट वॉज क्लियर टू यू, एंड नाउ आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स का क्या मतलब है कि NIN ने NIN के बाहर के लोगों के लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी। NIN के बाहर मतलब NIN इन इटसेल्फ इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट। NIN हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ICMR के अंदर आता है। ठीक है, पर NIN ने बाहर के और रिसर्च सेंटर्स के लिए क्या उनके लिए क्या सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं। ठीक है, इस सर्विसेज में हमारा यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी। इट विल इंक्लूड द क्लिनिकल, लेबोरेटरी, एनिमल, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। These will be the services: clinical services, laboratory services, animal services, information services and technology services. These are the wholesome services which were provided by the NIN to the outside centers or the outsider centers. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो NIN हमारा है that maintains an excellent rapport with various institutions. NIN बाकी इंस्टीट्यूशंस के साथ भी बहुत अच्छा rapport को मेंटेन करके चलता है, बहुत अच्छा, बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप्स को लेकर के चलता है। इन हैदराबाद के अंदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और हैदराबाद के बाहर हैं जो, उनके साथ भी इट हैज अ प्रॉपर बिल्डअप रिपोर्ट विद इट, एंड वो
साथ में मिल करके NIN also contributes its participation in conducting the researches with those other institutes. Okay. जो न्यूट्रिशन यूनिट्स NIN ने स्टैब्लिश करी थी, जो 3 न्यूट्रिशन यूनिट्स मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने उन यूनिट्स को जो स्टैब्लिश किया, उसके लिए भी दे वर प्रोवाइडिंग प्रॉपर पेशेंट केयर टू द इंडिविजुअल्स विद वेरियस न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स की मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि जो उन्होंने 3 यूनिट्स प्रिपेयर करी थी, 3 जो they have their units, they have their hospitals in the Hyderabad itself, local hospitals. वहाँ पे वो patients को proper treatment और proper they were being properly given treatment regarding the nutritional disorders. Then जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है NIN का, ओके, पैथोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी का जो प्रॉपर कैसे इन्फेक्शन बॉडी में काम कर रहा है, कैसे वो बॉडी में एक्ट करता है, वो जानने का काम पैथोलॉजी का होता है. ठीक है. सो जो पर्टिकुलरली जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट था NIN का, it basically has been doing various sort of services. It has been providing various sort of services to various hospitals in हैदराबाद में सिर्फ उनके खुद के हॉस्पिटल्स के अलावा भी जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम कर रहा है ये जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है NIN का. देन बहुत सारे हमारे ऐसे साइंटिफिक पब्लिकेशंस हैं NIN के जो ये दिखाते हैं, बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं. पब्लिकेशंस मतलब जो प्रिंटेड, आप कह सकते हो प्रिंटेड बुक्स हो सकती हैं, प्रिंटेड रिसर्चेज हो सकती हैं, प्रिंटेड आपके न्यूज हो सकता है, यू कैन से. जो NIN का पब्लिकेशन है दैट ऑल्सो शोज कि NIN का एक फ्रूटफुल कोलैबोरेशन रहता है इन द रिसर्च विद द अदर इंस्टीट्यूट्स. बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च सेंटर्स के साथ में जो NIN है दैट हैज इट्स ओन कोलैबोरेशन, जिससे कि प्रॉपर रिसर्चेस को कंडक्ट किया जा सकता है. एंड दोज आर बीइंग कंडक्टेड एज वेल. ओके. देन नेक्स्ट इज NIN हमारा फिर साथ साथ में इंटर लेबोरेटरी सर्विसेज को भी प्रोवाइड करता है. इंटर लेबोरेटरी सर्विसेज मतलब जैसे अगर मेरा कंसिडर इट लाइक एनीबॉडी एज NIN, ठीक है. हमारा जो इंटर लेबोरेटरी मतलब जैसे ये कोई और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये NIN है, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू दिस एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू देम. ओके. सो इंटर लेबोरेटरी कुछ सर्विसेज ये इस लेबोरेटरी को देते हैं, कुछ ये इस लेबोरेटरी या इस इंस्टीट्यूट को देते हैं. सो NIN हैज बीन प्रोवाइडिंग सम इंटर लेबोरेटरी सर्विसेज टू द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑन द म्यूचुअल बेसिस पे. म्यूचुअल बेसिस मतलब दोनों की रजामंदी के साथ, दोनों के फ्रूटफुल एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के साथ में इट इज बीन कंडक्टेड एंड बीइंग डन बाय द NIN हैदराबाद. ओके. सो इंस्टीट्यूशन हमारा साथ साथ में जो NIN है वो बहुत सारे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करवाता है फॉर द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन देयर ओन फील्ड. तो उनके लिए ये बहुत सारा ट्रेनिंग को भी कंडक्ट कराता है. दैट कैन बी शॉर्ट टर्म, दैट कैन बी लॉन्ग टर्म. तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी कंडक्ट करवाता है. ये प्रोग्राम्स हमारे हो सकते हैं इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल और इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिशन. साथ साथ में ऑल्सो इट कंडक्ट्स द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द एलीड फील्ड्स में भी ये हमारे ट्रेनिंग को कंडक्ट कराता है, जहाँ पे NIN का एक्सपर्टीज है. उन जिन एरियाज में NIN एक्सपर्ट है, जो एरियाज NIN की स्पेशलिटी है, जो उनका एक्सपर्टीज है, उन एरियाज में भी उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के लिए भी वो ट्रेनिंग को और स्टडी प्रोग्राम्स को वो कंडक्ट करवाते हैं. ओके. क्लिनिकल और अप्लाइड न्यूट्रिशन के अलावा जो बाकी चीजें हैं जो NIN की एक्सपर्टीज के अंदर आते हैं, वो उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवाते हैं. ठीक है. देन बायोमेडिकल रिसर्चेस को कैरी आउट कराने के लिए भी हमारा जो एनिमल्स का जो हमारा बायोमेडिकल रिसर्चेज होती हैं वो एनिमल्स के ऊपर कंडक्ट करी जाती हैं, राइट. जैसे कि हमारे गिनी पिग्स हो गए. देन हमारे कुछ रिसर्चेज जो डॉग्स के ऊपर कंडक्ट कराते हैं, कुछ कैट्स के ऊपर कंडक्ट कराते हैं. सो इस तरीके की बायोमेडिकल रिसर्चेस को कंडक्ट कराने के लिए भी हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये प्रोवाइड करता है एनिमल्स को. ओवर 160 इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, पूरी कंट्री में मिला करके ये 160 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स को एनिमल्स भी प्रोवाइड करवाता है फॉर कैरिंग आउट द बायोमेडिकल रिसर्च. ओके. नेक्स्ट क्या है,
जो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट है NIN का, दैट डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट, डॉक्यूमेंटेशन मतलब जब जहाँ पे सारी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जहाँ पे सब लिखा जाता है, प्रॉपर रिटन इन्फॉर्मेशन इज देयर। सो जो डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट है NIN का, दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू अदर इंस्टीट्यूट्स, वो दूसरे इंस्टीट्यूट्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन विच इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिसर्चेस। अगर NIN ने कोई रिसर्च कंडक्ट करी और NIN का जो भी रिजल्ट आया, जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है, दैट इज पास्ड ऑन टू द अदर इंस्टीट्यूट्स बाय द डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ द NIN। ठीक है। NIN में फिर देयर ऑल्सो इज अ लाइब्रेरी, उनकी अपनी लाइब्रेरी भी होती है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं, बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। जर्नल्स मतलब जैसे रिसर्च जर्नल्स, जो रिसर्च है उसकी पूरा डिटेल्ड एंट्री, पूरा डिटेल ऑफ दैट रिसर्च। तो बहुत सारे वहाँ पे बुक्स होते हैं, बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स होते हैं जहाँ पे द डेटा कैन बी कंपाइल्ड एंड द डेटा कैन बी कलेक्टेड। न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग जो डेटा है उसको कंपाइल कर सकते हैं। कंपाइल करना मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, मिला सकते हैं। सो द डेटा कैन बी कंपाइल्ड एंड ऑल्सो द डेटा कैन बी कलेक्टेड विच इज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन न्यूज। और ये जो लाइब्रेरी के लिए मैंने बताया, वो बाकी इंस्टीट्यूट्स भी इन लाइब्रेरीज को अप्रोच कर सकती हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम यही पढ़ रहे हैं ना कि बाकियों के लिए क्या सर्विसेज NIN प्रोवाइड कर रहा है, तो वही यहाँ पे मैं बता रही हूँ। सेकेंड सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द NIN टू द अदर इंस्टीट्यूट्स इज द न्यूट्रिशन न्यूज। न्यूट्रिशन न्यूज हमारा क्या होता है? इसमें NIN अपडेट करता है न्यूज को क्वार्टरली। NIN पब्लिश करता है न्यूज को। इस न्यूज में हमारा क्या होता है, दिस न्यूज, और पहली चीज तो ये न्यूज हमारी जो है ये क्वार्टरली अपडेट करी जाती है, क्वार्टरली ये न्यूज को बनाया जाता है। उसके बाद इस न्यूज को सप्लाई किया जाता है टू द वेरियस गवर्नमेंट्स एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कई सारी गवर्नमेंट्स को भी ये दिया जाता है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है। लाइब्रेरी में भी फिर ये न्यूज रखी जाती है। और मेनली इस न्यूज का काम क्या है, मेनली इस न्यूज में क्या होता है? इट comprises of all the information, all the authentical information which is regarded to the nutrition. न्यूट्रिशन की फील्ड में जो भी ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन है, ऑथेंटिकल का क्या मतलब है? जो 100% एकदम सही इन्फॉर्मेशन, ओके, जिसमें प्रॉपर स्टडी हैज बीन डन, इट हैज नो फ्लॉज इन इट, कोई उसमें कुछ गलतियां नहीं है, कुछ ये नहीं, कुछ करेक्शंस नहीं है। जो उन्होंने रिसर्च करी वो ऑथेंटिक रिसर्च है, मतलब इट इज वैलिड, इट इज रिलायबल। ठीक है। सो उस इंफॉर्मेशन को फिर उन लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में, इन सब जगहों पे उसको पहुंचा दिया जाता है ताकि जिसको भी चाहिए हो वो अप्रोच करके उसको ले सके। ओके। नेक्स्ट इज NIN ने साथ साथ में ऑल्सो NIN हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी। NIN ने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किस चीज के लिए? टेक्नोलॉजी फॉर डबल फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट का डबल फोर्टिफिकेशन कर रहे थे वो तो सबके लिए हो रहा था ना, बट NIN हैज, मतलब वो सबके लिए है तो मतलब वो बाकी इंस्टीट्यूट्स को भी इंक्लूड कर रहा है। ठीक है। सो NIN ने हेल्प किया, NIN ने इनिशिएट किया ऑफ द डबल फोर्टिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट। डबल फोर्टिफिकेशन मतलब आयरन एंड आयोडीन इन द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में आयरन और आयोडीन को मिक्स किया। ठीक है। सो डबल फोर्टिफिकेशन के लिए इन्होंने इनिशिएट किया, साथ साथ में सॉल्ट टेस्टिंग किट्स के लिए भी इनिशिएट किया। सॉल्ट टेस्टिंग किट्स, सॉल्ट टेस्टिंग किट्स का क्या काम होता है? ये चेक करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं कंटेंट ऑफ आयोडीन एंड आयरन इन द सॉल्ट। सॉल्ट में आपने आयरन और आयोडीन मिक्स तो कर दिया, ऐड तो कर दिया, फोर्टिफाई तो कर दिया, अब इसको कैसे, कंटेंट को कैसे चेक करेंगे कि इसमें आयरन सही क्वांटिटी में है या नहीं, और इसमें या फिर आयोडीन सही क्वांटिटी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हमें चाहिए थे द सॉल्ट टेस्टिंग किट्स। सो दीज वर ऑल्सो इनिशिएटेड बाय द NIN हैदराबाद। ओके। देन साथ साथ में इट ऑल्सो हेल्प्ड इंडस्ट्रीज, दूसरी इंडस्ट्रीज को इन्होंने हेल्प किया ताकि वो मैन्युफैक्चर कर सकें। इंडस्ट्रीज मतलब जो बनाते हैं सॉल्ट को। तो इन्होंने ये चीज फाइंड आउट कर लिया कि सॉल्ट में अगर आयोडीन और आयरन मिक्स करेंगे तो इट विल बी गुड, इट विल बी बेनिफिशियल, इट विल बी वेरी इफेक्टिव। फिर उन्होंने हेल्प किया मैन्युफैक्चरर्स को कि वो बना सकें इस सॉल्ट को, सॉल्ट में आयरन और आयोडीन को ऐड करके वो बना सकें। ठीक है। सो इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को भी हेल्प किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को हेल्प किया ताकि वो बना सके आयरन फोर्टिफाइड सॉल्ट को। ओके।
देन ऑल्सो इट हैज प्रोवाइडेड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इनके इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे थे, मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास थे. दे हैड pretty much everything. Actually, I should not be saying everything, but they had pretty much everything, whatever was required or whatever is required for the researches, whatever they conduct regarding the nutritional sciences. तो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स को, जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है इनका, वो इस चीज में भी हेल्प कर रहा था कि वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा था टू द अदर ICMR सेंटर्स. NIN भी ICMR के अंदर ही आता है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंदर ही हमारा ये जो NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी उसके अंदर आता है ना. वैसे ही बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके अंदर आते हैं. तो NIN ने हेल्प किया. NIN का जो ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है, दैट बेसिकली वाज हेल्पिंग, और दैट बेसिकली हेल्प्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज to the other ICMR affiliated centers or to the other ICMR centers in maintaining and in repairing their instruments. उनके जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको मेंटेन कर सके, उनको रिपेयर कर सके और उनको बेटर कर सके. इसके लिए तो जब भी इसका रिक्वायरमेंट हुआ है, तभी भी उन्होंने, जो हमारा ये NIN था, इन्होंने हेल्प किया है फॉर हैविंग अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स और फॉर helping the other institutes to maintain the quality of their own equipments and their own instruments. तो उसके लिए भी इन्होंने हेल्प किया है. So with this, yeah, now it has come to an end. If you want, I can repeat it once again. Services provided to the outsiders में क्या क्या मैंने बताया है, एक बार I'll be just summing up everything. सर्विसेज में सबसे पहला हमारा ये था कि इनका रिपोर्ट बाकी सारे जो हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा है. NIN मिल करके उनके साथ बहुत सारी रिसर्चेस को कंडक्ट करता है, बहुत सारी फ्रूटफुल रिसर्चेस को कंडक्ट करता है. ओके, नेक्स्ट वन वाज कि इंटर लेबोरेटरी सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द NIN. इंटर लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं NIN. ट्रेनिंग को कंडक्ट कराते हैं, विच कैन बी द शॉर्ट टर्म और द लॉन्ग टर्म. थर्ड पॉइंट वाज कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द एनिमल्स to over 160 institutes throughout the country. पूरी कंट्री में 160 से भी ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में ये एनिमल्स को भी प्रोवाइड करवाते हैं बायोमेडिकल रिसर्च के लिए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन वाज जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट है NIN का, वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है दूसरे इंस्टीट्यूट्स को. लाइब्रेरी है उनकी अपनी, जहाँ पे द अदर इंस्टीट्यूट्स कैन बी स्टडिंग देयर वर्क. जो उन्होंने काम किया है उसको बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनके काम को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. देन नेक्स्ट वाज द न्यूट्रिशन न्यूज. न्यूट्रिशन न्यूज में क्या था कि ये क्वार्टरली न्यूज को पब्लिश करते हैं, पब्लिकेट करते हैं. देन लाइब्रेरी में उस न्यूज को ये रखते हैं, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तक वो न्यूज कन्वे करी जाती है. देन नेक्स्ट वाज NIN ने साथ साथ में इनिशिएट किया, आगे बढ़कर उन्होंने पार्टिसिपेट किया फॉर द डबल फोर्टिफिकेशन ऑफ सॉल्ट टेस्टिंग किट्स को भी बनाने में उन्होंने इनिशिएट किया. मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं उनको भी हेल्प किया ताकि वो इस सॉल्ट को, डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकें, बना सकें. देन इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट जो है NIN का, वो साथ साथ हेल्प करता है दूसरे इंस्टीट्यूट्स को जो ICMR के अंदर आते हैं, उनको किस चीज में, उनके खुद के इंस्ट्रूमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए इट इज हेल्पफुल. ओके, सो या दिस वाज ऑल अबाउट दिस NIN, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद. सो या आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू. NIN हैदराबाद अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई जगह पे इसके बारे में बात ऑलरेडी की हुई है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ एजेंसी. ऑल द अदर एजेंसीज आर इम्पॉर्टेंट एज वेल. FAO भी इम्पॉर्टेंट है आपका, NIN भी इम्पॉर्टेंट है. द वेरियस अदर्स विच यू विल स्टडी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी NIN को इग्नोर नहीं करना, अच्छे से पढ़ लेना. एंड आई होप वॉट एवर आई हैव taught you today so far is clear to you all. Also one more thing is there which I have to say कि attendance के लिए there has been some issue going on that ma'am, yeah, I did attend your class, ma'am, I did, but my attendance is not marked. तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि कभी कभी ये हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आप कमेंट में अटेंडेंस आपने मार्क कर दी है पर मार्क हुई ना हो, या फिर ये हो सकता है कि वो शो नहीं हुआ हो मुझे. तो इसके लिए सारा कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रॉम टुडे आई हैव डिसाइडेड कि पहले मैंने आपको बोला था कि 8 बजे तक आपको अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, लेकिन अभी मैं ये बोल रही हूँ 8 बजे थोड़ा सा लेट होगा,
7 or 7:30, 7:30, 7 एक्चुअली यू टेक। तो 7 बजे तक आपको हर रोज अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। 7 बजे के बाद जिसकी भी अटेंडेंस मार्क करी जाएगी उसका प्रेजेंट मार्क हुआ या नहीं मार्क हुआ उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई एम टेलिंग यू राइट इन फ्रंट, ठीक है। और अगर किसी बच्चे को, कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया, जीएनएम के कुछ बच्चों ने मुझे ये बताया कि मैम हमारे फोन्स में कमेंट सेक्शन का ऑप्शन नहीं देता है, कुछ वो जियो के फोन शायद यूज कर रहे हैं या जो भी है, तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे में कमेंट सेक्शन का ऑप्शन नहीं देता है। तो मैंने कहा अगर कमेंट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे, जो लेक्चर मैं आपको ग्रुप में लिंक जिसका शेयर करती हूँ वो सेम लिंक आपको मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करना है, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में तो सब होते हैं ना, पर्सनली मुझे करना है। जो मेरा अकेले का, जो जहाँ पे आपको मेरा अकेले के जो कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप पे, वहां पे आपको मुझे वो लिंक शेयर करना है, आपका नाम मेंशन करना है एंड यू हैव टू राइट प्रेजेंट और प्रेजेंट मैम, ठीक है। ये करना है आपको, वही सेम लिंक शेयर करना है, अपना नाम मेंशन करना है और लिखना है प्रेजेंट मैम। साथ साथ में जो बच्चे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं अबाउट देयर प्रेजेंस, वो अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि रोल नंबर सब आगे पीछे गलत सलत लिख देते हो। जीएनएम वाले कभी कभी बीएससी में कमेंट कर देते हैं, बीएससी वाले कभी कभी जीएनएम में कमेंट कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम आपको अपना वहां पे नाम लिखना है और लिखना है प्रेजेंट मैम, लाइक दीपिका सोनी प्रेजेंट मैम, लाइक दैट, ठीक है। इतना करना है आपको, अपना रोल नंबर अब कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। और डेली आप जो अटेंडेंस मुझे 7 बजे दोगे वो अटेंडेंस मैं 8 बजे तक आप लोगों को रोज का रोज आपको आपकी अटेंडेंस शेयर करूंगी, ताकि आपको पता रहे कि आपकी प्रेजेंट मार्क्ड है या एब्सेंट मार्क्ड है, ठीक है। अब ये हफ्ते में एक दिन वाला सीन जो है दैट इज नॉट वर्किंग आउट, it's very confusing for you people and for me as well, mostly for me, so let's not do that. So daily का daily आपको आपका अटेंडेंस जो है that will be given. So 7 बजे तक सबको आपकी अटेंडेंस मार्क कर देनी है। So yeah, this was all about today's topic and I hope everything was clear to you all so far. And yeah, the next topic which I will be taking tomorrow is your NIPCCD. NIPCCD is National Institute of Public Cooperation and Child Development. So this is the topic for tomorrow, and whatever confusions you have in the agencies which I have taught, the FAO and NIN, you can keep writing your points and we'll be discussing the same on the Saturday's doubt session. So yeah, thank you class.